کے لیے روز بروز جو ہے خطرناک بنتا جا رہا ہے۔ عمران خان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز، ان کی اہلیہ، خواتین پابند سلاسل ہیں۔ پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح فاشزم پر مبنی عدالتی نظام کے ذریعے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے، اور ایک ہفتے میں 3 سزائیں، اور ابھی پھر جو ہے القادر ٹرسٹ کیس میں نیا کیس مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے تاکہ یہ مستقبل پوشیدہ ہے۔ پارلیمنٹ کا کیا قانون سازی میں بھی آپ کو حصہ لیں گے؟ جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے ان کا میسج کیا؟ وہ جوتا جو تھا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا۔ یہ جوتا نہیں تھا، یہ اس جوتے کی پیداوار ہے جو ضیاء الحق پہنا کرتا تھا، اور جس کے طفیل یہ وزیر اعلیٰ بنا 85 میں اور آج تک پاکستان کی سیاست میں ہے، تو لہٰذا ان کو اصل مقام دکھا رہا تھا۔ میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں، ایوان میں حلف اٹھا رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے، اب ملک پہ تو رحم کر لو۔ تھوڑا سا ضمیر ہوتا تو کہہ دیتے کہ نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں فی الشدہ مینڈیٹ کے ساتھ ایوان کا ممبر بنوں، تو ان کا حق بنتا ہے جوتا دکھانے کا۔ انڈیا میں ختم ہو گیا ہے، بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے، چائنا میں نہیں ہے، نیپال میں نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے، کہاں پر ہیں؟ ایران میں نہیں ہے، چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما، لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے، آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ تمام طرح سیاسی جماعتوں بشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باقی جماعتوں کی بات ہونی چاہیے۔ صاحب جو ہیں بانی چیئرمین، انہوں نے بولا کہ ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی، مسلم لیگ نون سے بات نہیں ہو سکتی، کیسے رہے گا؟ دیکھیں، اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ ہم نے ملک کے وسیع مستقبل کے لیے ایک ڈھانچہ مرتب کرنا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر سے، یہ عفریت ہے، بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دوچار ہیں۔ اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبھیر گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں، ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو ایکنالج نہیں کرے گی، دنیا احترام نہیں دے گی، ایوان کے اندر یہ دینگا مشتی جاری رہے گی، تو لہذا جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی، نہ معیشت کا پہیہ درست ہونا ہے، نہ ملک میں پولرائزیشن ختم ہونی ہے، نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں جو روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے، ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایک گورنمنٹ مجھے قانونی پوائنٹ چاہیے کہ آپ ظاہر ہے سینئر لائر بھی رہے ہیں، جج بھی رہے ہیں، بغیر قرم پورا ہوئے، بغیر ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کی خواتین کے ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات ہوں گے، اسپیکر کے ہوں گے، اسی طرح امید کی جا رہی وزیر اعظم کا بھی ہو جائے گا، یہ آئینی اعتبار سے معاملہ کیسا ہے؟ ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ ہمارے ریزسٹنس، ہمارے احتجاج کے باوجود اسپیکر نے اس پہ کوئی رولنگ نہیں دی، اور جو لوگ اس ووٹ کے عمل سے رہ گئے ہیں ان کا حق تھا ایوان کا ممبر بننے کی وساطت سے کہ وہ بھی اس پروسیس میں ووٹ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم سے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، تو یہاں بھی انہوں نے، الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہماری ریزرو سیٹوں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے۔ اسپیکر کو چاہیے تھا اس کو مؤخر کرتے، لیکن ان کو جلدی ہے حکومت سازی کی، ان کو اندیشے ہیں کہ کوئی نیا کڑا جو ہے نہ نکل آئے، کوئی اور پارٹی جو ہے کہیں اور سے کوئی نہ چل دے، تو لہٰذا اپنے خوف کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جلدی پڑی ہوئی۔ کل کے احتجاج کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ کل احتجاج، کل شاید بارش متوقع ہے، تو بارش کے باوجود لیاقت باغ میں وہاں عوام کو میری اپیل ہے کہ لیاقت باغ آئیں، پنڈی کے عوام اور تمام فیملی سے، وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے مری روڈ کے راستے سے ہم ایکسپریس وے سے ہوتی ہوئی سیدھا
हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेसवे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, खवातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम कमेंट करते हैं आप 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से। आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। क्या आपकी पार्टी के आपकी कायदीन से आपने मशवरा किया है और जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है? जी, ये एक जनरल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान चकजई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान जज भी रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदार कि ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि यह मुस्तकबिल पोशीदा है। तो ये बताइएगा कि पार्लियामेंट का क्या कानून साजी में भी आपको हिस्सा लेंगे? जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उनका मैसेज क्या? वो जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियां साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये उस जूते की पैदावार है जो ज़ियाउल-हक पहना करता था और जिसके तुफेल ये वज़ीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियां नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा जमीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिलशुदा मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। इंडिया में खत्म हो गया है, बांग्लादेश में खत्म हो गया है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है,
अफगानिस्तान में नहीं है, कहाँ पर हैं, ईरान में नहीं है, चारों अतराफ पे आप नजरें घुमा, लिहाजा हमारे मुल्क में भी खत्म होना चाहिए। अच्छा सर ये बता दीजिए, आपने बात की कि गवर्नमेंट तमाम तरह सियासी जमातों बशमूल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों की बात होनी चाहिए। जगह साहब जो हैं बानी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि एमकेएम से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती, कैसे रहेगा? देखें, अगर बात इस पे करनी है कि हमने मुल्क के वसी मुस्तकबिल के लिए एक ढांचा मुरतब करना है, अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को हमने डिलीवर करना है इस मॉन्स्टर से, ये अफरीत है, बहुत बड़े खतरे में आजकल हम खतरे से दो चार हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें ये समझ सकती है कि हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सबको एहसास होना चाहिए हमारे ऊपर गंभीर गठाएं छाई हुई हैं, हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की बनने वाली हुकूमत को एक्नॉलेज नहीं करेगी, दुनिया एहतराम नहीं देगी, ऐवान के अंदर ये धींगा मस्ती जारी रहेगी। तो लिहाजा जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, न मईशत का पहिया दुरुस्त होना है, न मुल्क में पोलराइजेशन खत्म होनी है, न मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोजाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका खात्मा मुमकिन। एक कमेंट, मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप जाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की खवातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे, स्पीकर के होंगे, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा, आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिजर्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। स्पीकर को चाहिए था इसको मुअख्खर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की, इनको अंदेश है कि कोई नया कड़ा जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो है कहीं और से कोई न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के हैं, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ अवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आएँ, पिंडी के अवाम और तमाम फैमिली से, वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होती हुई सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, खवातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम कमेंट करते हैं, आप 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था, और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से, आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है, और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। क्या आपकी पार्टी के, आपकी कायदीन से आपने मशवरा किया है, और जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है, ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान चकजई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान जज भी रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे
आपसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदार कि ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि यह मुस्तकबिल पोशीदा है। तो ये बताइएगा कि पार्लियामेंट का क्या कानून साजी में भी आपको हिस्सा लेंगे? जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उनका मैसेज क्या? वो जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियां साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये उस जूते की पैदावार है जो ज़िया-उल-हक पहना करता था, और जिसके तुफेल ये वज़ीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियां नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा जमीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिलशुदा मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। इंडिया में खत्म हो गया है, बांग्लादेश में खत्म हो गया है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कहां पर हैं? ईरान में नहीं है। चारों अतराफ पे आप नजरें घुमा, लिहाजा हमारे मुल्क में भी खत्म होना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिए, आपने बात की कि गवर्नमेंट तमाम तरह सियासी जमातों, बशमूल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों की बात होनी चाहिए। चंद साहब जो हैं बानी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि एमकेएम से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती, कैसे रहेगा? देखिए, अगर बात इस पे करनी है कि हमने मुल्क के वसी मुस्तकबिल के लिए एक ढांचा मुरतब करना है, अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को हमने डिलीवर करना है इस मॉन्स्टर से, ये अफरीत है, बहुत बड़े खतरे में आजकल हम खतरे से दो चार हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें ये समझ सकती है कि हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सबको एहसास होना चाहिए हमारे ऊपर गंभीर गठाएं छाई हुई हैं, हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की बनने वाली हुकूमत को एक्नॉलेज नहीं करेगी, दुनिया एहतराम नहीं देगी, ऐवान के अंदर ये दींगा मस्ती जारी रहेगी। तो लिहाजा जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, न मईशत का पहिया दुरुस्त होना है, ना मुल्क में पोलराइजेशन खत्म होनी है, ना मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोजाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका खात्मा मुमकिन है। एक कमेंट, मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप जाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की खवातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे, स्पीकर के होंगे, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा। आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे
हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिजर्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। स्पीकर को चाहिए था इसको मुअख्खर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की। इनको अंदेश है कि कोई नया कड़ा जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो है कहीं और से कोई न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के है, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ अवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आए। पिंडी के अवाम और तमाम फैमिली से वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होती हुई सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, खवातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम कमेंट करते हैं, आपको बताया कि 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था, और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से। आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है, और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। क्या आपकी पार्टी के आपकी कायदीन से आपने मशवरा किया है, और जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है, ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान अचकज़ई ने बेसिकली वो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान जज भी रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदाना कि ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में
नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है ताकि यह मुस्तकबिल पोशीदा है। मतलब साहब ये बताइएगा कि पार्लियामेंट का नंबर है क्या कानून साजी में भी आपको हिस्सा लेंगे, जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उनका मैसेज क्या है? वो जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियां साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये उस जूते की पैदावार है जो ज़िया-उल-हक पहना करता था और जिसके तुफेल ये वजीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियां नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफा वजीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा जमीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिलशुदा मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। इंडिया में खत्म हो गया है, बांग्लादेश में खत्म हो गया है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कहां पर हैं? ईरान में नहीं है। चारों अतराफ पे आप नजरें घुमा, लिहाजा हमारे मुल्क में भी खत्म होना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिए, आपने बात की कि तमाम तरह सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी, बाकी जमात की बात होनी चाहिए। जज साहब जो हैं बानी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि एमकेएम से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती, कैसे रहेगा? देखिए, अगर बात इस पे करनी है कि हमने मुल्क के वसी मुस्तकबिल के लिए एक ढांचा मुरतब करना है, अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को हमने डिलीवर करना है इस मॉन्स्टर से, ये अफरीत है, बहुत बड़े खतरे में आजकल हम खतरे से दो चार हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें ये समझ सकती है कि हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सबको एहसास होना चाहिए हमारे ऊपर गंभीर गठाएं छाई हुई हैं, हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की बनने वाली हुकूमत को एक्नॉलेज नहीं करेगी, दुनिया एहतराम नहीं देगी, ऐवान के अंदर ये दींगा मस्ती जारी रहेगी। तो लिहाजा जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, न मईशत का पहिया दुरुस्त होना है, न मुल्क में पोलराइजेशन खत्म होनी है, न मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोजाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका खात्मा मुमकिन है। एक कमेंट, मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप जाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की खवातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे, स्पीकर के होंगे, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा। आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिजर्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। स्पीकर को चाहिए था इसको मौखर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की, इनको अंदेश है कि कोई नया कड़ा जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो है कहीं और से कोई न चल दे। तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई। कल के एहतजाज के हवाले से क्या किया? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के हैं, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ अवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आएँ, पिंडी के अवाम और तमाम फैमिली से, वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होती हुई सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, खवातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम कमेंट करते हैं, आप 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस
दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हो गई। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से। आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। क्या आपकी पार्टी के आपके कायदीन से आपने मशवरा किया है और जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है? ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान अचकज़ई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान जज भी रहे हैं, मुझे ये बताएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदाना कि ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि यह मुस्तकबिल पोशीदा है। ये बताइएगा कि पार्लियामेंट का क्या कानून साजी में भी आपको हिस्सा लेंगे? जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उनका मैसेज क्या है? वो जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियां साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये उस जूते की पैदावार है जो ज़िया-उल-हक पहना करता था और जिसके तुफेल ये वज़ीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियां नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा जमीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिलशुदा मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। इंडिया में खत्म हो गया है, बांग्लादेश में खत्म हो गया है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कहां पर हैं? ईरान में नहीं है। चारों अतराफ पे आप नजरें घुमा, लिहाजा हमारे मुल्क में भी खत्म होना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिए, आपने बात की कि तमाम तरह सियासी जमातें, बशमूल मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी, बाकी जमात की बात होनी चाहिए। जज साहब जो हैं बानी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि एमकेएम से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती, कैसे रहेगा? देखें, अगर बात इस पे करनी है कि हमने मुल्क के वसी मुस्तकबिल के लिए
एक ढांचा मुरतब करना है। अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को हमने डिलीवर करना है इस मॉन्स्टर से, ये अफरीत है, बहुत बड़े खतरे में आजकल हम खतरे से दो चार हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें ये समझ सकती है कि हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सबको एहसास होना चाहिए हमारे ऊपर गंभीर गठाएं छाई हुई हैं, हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की बनने वाली हुकूमत को एक्नॉलेज नहीं करेगी, दुनिया एहतराम नहीं देगी, ऐवान के अंदर ये दींगा मस्ती जारी रहेगी। तो लिहाजा जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, न मईशत का पहिया दुरुस्त होना है, न मुल्क में पोलराइजेशन खत्म होनी है, न मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोजाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका खात्मा मुमकिन। एक कमेंट, मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप जाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की खवातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे, स्पीकर के होंगे, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा। आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिजर्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। स्पीकर को चाहिए था इसको मौखर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की, इनको अंदेश है कि कोई नया कड़ा जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो है कहीं और से कोई न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के हैं, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ अवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आएँ, पिंडी के अवाम और तमाम फैमिली से, वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होती हुई सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, खवातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था, और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से, आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है, और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। क्या आपकी पार्टी के आपकी कायदीन से आपने मशवरा किया है, और जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है? ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान अचकज़ई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान जज भी रहे हैं, मुझे ये बताएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है, डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदार कि ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया।
ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि यह मुस्तकबिल पोशीदा है। अच्छा, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट का क्या कानून साजी में भी आपको हिस्सा लेंगे? जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उनका मैसेज क्या? वो जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियां साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये उस जूते की पैदावार है जो ज़िया-उल-हक पहना करता था, और जिसके तुफेल ये वज़ीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियां नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा ज़मीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिलशुदा मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। इंडिया में खत्म हो गया है, बांग्लादेश में खत्म हो गया है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कहां पर हैं? ईरान में नहीं है। चारों अतराफ पे आप नजरें घुमा, लिहाजा हमारे मुल्क में भी खत्म होना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिए, आपने बात की कि गवर्नमेंट तमाम तरह सियासी जमातें, बशमूल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों की बात होनी चाहिए। जज साहब जो हैं बानी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि एमकेएम से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती, कैसे रहेगा? देखें, अगर बात इस पे करनी है कि हमने मुल्क के वसी मुस्तकबिल के लिए एक ढांचा मुरतब करना है, अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को हमने डिलीवर करना है इस मॉन्स्टर से, ये अफरीत है, बहुत बड़े खतरे में आजकल हम खतरे से दो चार हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें ये समझ सकती है कि हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सबको एहसास होना चाहिए हमारे ऊपर गंभीर गठाएं छाई हुई हैं, हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की बनने वाली हुकूमत को एक्नॉलेज नहीं करेगी, दुनिया एहतराम नहीं देगी, ऐवान के अंदर ये दींगा मस्ती जारी रहेगी। तो लिहाजा जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, न मईशत का पहिया दुरुस्त होना है, न मुल्क में पोलराइजेशन खत्म होनी है, न मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोजाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका खात्मा मुमकिन है। एक कमेंट, मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप जाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की खवातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे, स्पीकर के होंगे, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा। आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिजर्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है,
स्पीकर को चाहिए था इसको मुअख्खर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की। इनको अंदेश है कि कोई नया कड़ा जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो है कहीं और से कोई न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के हैं, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ अवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आएँ, पिंडी के अवाम और तमाम फैमिली से, वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होती हुई सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, खवातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम कमेंट करते हैं, आपने 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से, आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। क्या आपकी पार्टी के आपकी कायदीन से आपने मशवरा किया है और जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है? ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान चकजई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान जज भी रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदार कि ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीनी अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि यह मुस्तकबिल पोशीदा है। ये बताइएगा कि पार्लियामेंट का क्या कानून साजी में भी आपको हिस्सा लेंगे? जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उनका मैसेज क्या? वो जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियां साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये
उस जूते की पैदावार हैं जो ज़िया-उल-हक पहना करता था और जिसके तुफेल ये वज़ीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियां नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा ज़मीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिलशुदा मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। इंडिया में खत्म हो गया है, बांग्लादेश में खत्म हो गया है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कहां पर हैं? ईरान में नहीं है। चारों अतराफ पे आप नजरें घुमा, लिहाजा हमारे मुल्क में भी खत्म होना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिए, आपने बात की कि गवर्नमेंट तमाम तरह सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों की बात होनी चाहिए। जज साहब जो हैं बानी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि एमकेएम से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती, कैसे रहेगा? देखिए, अगर बात इस पे करनी है कि हमने मुल्क के वसी मुस्तकबिल के लिए एक ढांचा मुरतब करना है, अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को हमने डिलीवर करना है इस मॉन्स्टर से, ये अफरीत है, बहुत बड़े खतरे में आजकल हम खतरे से दो चार हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें ये समझ सकती है कि हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सबको एहसास होना चाहिए हमारे ऊपर गंभीर गठाएं छाई हुई हैं, हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की बनने वाली हुकूमत को एक्नॉलेज नहीं करेगी, दुनिया एहतराम नहीं देगी, ऐवान के अंदर ये दींगा मस्ती जारी रहेगी। तो लिहाजा जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, न मईशत का पहिया दुरुस्त होना है, न मुल्क में पोलराइजेशन खत्म होनी है, न मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोजाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका खात्मा मुमकिन है। एक कमेंट, मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप जाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की खवातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे, स्पीकर के होंगे, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा। आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिजर्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। स्पीकर को चाहिए था इसको मौखर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की, इनको अंदेशे हैं कि कोई नया कड़ा जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो है कहीं और से कोई न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के हैं, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ अवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आए, पिंडी के अवाम और तमाम फैमिली से, वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होती हुई सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, खवातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम कमेंट करते हैं, आप मुलाकात के 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हो गई। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से, आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है
और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है, तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। क्या आपकी पार्टी के आपके कायदीन से आपने मशवरा किया है और जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है? ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान चकजई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान जज भी रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदार कि ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि यह मुस्तकबिल पोशीदा है। ये बताइएगा कि पार्लियामेंट का क्या कानून साजी में भी आपको हिस्सा लेंगे? जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उनका मैसेज क्या? वो जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियां साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये उस जूते की पैदावार है जो ज़ियाउल-हक पहना करता था, और जिसके तुफेल ये वज़ीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियां नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफा वज़ीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा ज़मीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिलशुदा मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। इंडिया में खत्म हो गया है, बांग्लादेश में खत्म हो गया है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कहां पर हैं? ईरान में नहीं है। चारों अतराफ पे आप नजरें घुमा, लिहाजा हमारे मुल्क में भी खत्म होना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिए, आपने बात की कि तमाम तरह सियासी जमातों, बशमूल मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों की बात होनी चाहिए। जज साहब जो हैं बानी चेयरमैन, उन्होंने बोला कि एमकेएम से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हो सकती, कैसे रहेगा? देखिए, अगर बात इस पे करनी है कि हमने मुल्क के वसी मुस्तकबिल के लिए एक ढांचा मुरतब करना है, अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को हमने डिलीवर करना है इस मॉन्स्टर से, ये अफरीत है, बहुत बड़े खतरे में आजकल हम खतरे से दो चार हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें ये समझ सकती है कि हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सबको एहसास होना चाहिए हमारे ऊपर गंभीर गठाएं छाई हुई हैं, हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है,
इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की बनने वाली हुकूमत को एक्नॉलेज नहीं करेगी, दुनिया एहतराम नहीं देगी, ऐवान के अंदर ये दींगा मस्ती जारी रहेगी। तो लिहाजा जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, न मईशत का पहिया दुरुस्त होना है, न मुल्क में पोलराइजेशन खत्म होनी है, न मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोजाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका खात्मा मुमकिन। एक कमेंट, मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप जाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की खवातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे, स्पीकर के होंगे, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा। आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिजर्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। स्पीकर को चाहिए था इसको मुअख्खर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की, इनको अंदेश है कि कोई नया कड़ा जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो है कहीं और से कोई न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के हैं, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ अवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आएँ, पिंडी के अवाम और तमाम फैमिली से, वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होती हुई सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, खवातीन से, तमाम यूथ से, बुजुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम कमेंट करते हैं, आपने 144 का नफाज है और गुज़श्ता बार भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, इस दफा बतौर मेंबर असेंबली भी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त भी मैं मेंबर असेंबली था, और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से, आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है, और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। क्या आपकी पार्टी के, आपकी कायदीन से आपने मशवरा किया है, और जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की आपने अभी बात की है, ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान चकजई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती है कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान जज भी रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है, डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शानदार कि ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शानदाना का भी वकील था, शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं,
और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, खवातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज्म पर मबनी अदालती निज़ाम के जरिए उनको सजाएं दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सजाएं, और अभी फिर जो है अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि यह मुस्तकबिल पोशीदा है। ये बताइएगा कि